Question is solve by double dash minus 2y dash minus 8y equal to 0, where by 0 equal to 3 and by dash 0 equal to 6. This is the previous year question UPSC 2016 main exam for 10 marks. So solution, given that by double dash minus 2y dash minus 8y equal to 0, I call it, this is equation number 1. Taking Laplace transform both sides of equation 1, so we have Laplace of y double dash minus twice Laplace of y dash minus 8 Laplace of y equal to 0. And we know that Laplace transform for y double dash equal to s square by s minus s by 0 minus y dash 0. And Laplace of y dash equal to s by s minus by 0, and Laplace of y is equal to by s also. And by using the given conditions, means by 0 equal to 3 and by dash 0 equal to 6, this equation becomes, means here we put by 0 equal to 3 and here we put by dash 0 equal to 6, here 3. And on simplifying, we have s square by s minus 3s minus 6 minus 2s by s minus 3 minus 8 by s equal to 0. On simplifying and taking common by s from these terms, so we have s square minus 2s minus 8 into by s equal to 3s, 3s, and 6 and 6 are cancelled here. So remain value is only by s equal to 3s upon s square minus 2s minus 8. Or we can write this minus 8 is equal to 4 minus 12. ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सके. सो हमने लिखा ये माइनस 8 इक्वल टू 4 माइनस 12. ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की यहाँ पर. एंड हमने एक और ट्रिक यूज की यहाँ पर, इस वाली वैल्यू को, इस s को -2 s इज कन्वर्ट इनटू s -2 + 2. ये सब जो प्रोसेस किया जा रहा है वो हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने में हेल्प करेगा. सो एंड अगेन वी ऑब्जर्व दैट दिस वैल्यू s square minus 2s plus 4 equal to s minus 2 square. So finally by s equal to 3 in the bracket s minus 2 plus 2 upon s minus 2 square plus minus 12. Suppose that this is equation number. And taking Laplace inverse transform both sides of equation 2, so we have Laplace inverse of by s equal to Laplace inverse of this value, Laplace inverse of 3 s minus 2 plus 2 upon s minus 2 square minus 12. एंड इनको हम सेपरेट डिवाइड करेंगे इस तरह से. एक टर्म ये आएगा एंड सेकंड टर्म यहां से हमारा ये मिलेगा. सो हमने इस टर्म को लिखा इस तरह से. So we have Laplace inverse of by s equal to 3 Laplace inverse of s minus 2 upon s minus 2 square, and this 12 can be written as under root 12 whole square also. And this value इस 3 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. 6 अपॉन अंडर रूट 12 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. ये और एक और स्टेप ऐड करना है. सो फाइनली हमने लिखा 6 अपॉन अंडर रूट 12 लाप्लास इनवर्स ऑफ अंडर रूट 12 अपॉन s minus 2 square minus 12 square also. सो ये हमारा स्टेप आ रहा है जिसमें कि हम
लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म में अप्लाई करना। सो बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, क्या करते हैं हम यहाँ से इस 2 को रिमूव करेंगे, यहाँ से इस 2 को रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पर यहाँ पर e/2t मल्टीप्लाई होगा। सो यही हमारे नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, सो वी हैव लाप्लास इनवर्स ऑफ बाई s इक्वल टू 3 into e power 2t Laplace inverse of s upon s square minus under root 12 square plus 6 upon under root 12 into e power 12 2t Laplace inverse of under root 12 upon s square minus under root 12 square. And we observe that this is the formula for cos hyperbolic 12 under root 12 t type. And this is the sin hyperbolic under root 12. ये हाइपरबोलिक वाले जो फॉर्मूला थे हमारे पास, उनका हमने यूज करके लिखा है। हमारे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, लाप्लास इनवर्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी लिख सकते हैं। चलिए इसको ए टी ये रहता है 1/s² माइनस ए स्क्र एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ कॉस hyperbolic AT is also s upon s square minus a square. So by using these both formulas, we can write this result easily. So final result is by t equal to 3 into e power 2t cos hyperbolic under root 12t plus 6 upon under root 12 e power 2t sin hyperbolic 12t also is the answer. So next question is solve. ये भी यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। सो सॉल्व बाय डबल डैश प्लस बाय इक्वल टू टी वेयर इनिशियल कंडीशंस आर बाय 0 इक्वल टू 1 एंड बाय डैश 0 इक्वल टू -2। सो ये भी 2015 के मेन एग्जाम का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, गिवन दैट बाय डबल डैश प्लस बाय इक्वल टू टी इक्वेशन नंबर 1 टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, सो वी हैव लाप्लास ऑफ बाय डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ बाय इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी, and we know that Laplace of by double dash equal to s square by s minus s by 0 minus by dash 0, a Laplace of by equal to by s, a Laplace of t equal to, by using the formula of Laplace of t power n equal to gamma n plus 1 upon s power n plus 1, so this is equal to 1 upon s square also. Suppose that this is equation number 2, and by using the given initial conditions. So given initial conditions are by 0 equal to 1 and by dash 0 equal to -2 also. So equation 2 में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे by 0 equal to 1 and by dash 0 equal to -2. So सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन 2 हमें चेंज होके मिलेगी इस तरह से। So by using the given initial conditions by 0 equal to 1 and by dash 0 equal to -2, equation 2 becomes s square by s minus s minus plus 2 into plus by s equal to 1 upon s square, and taking s square into by s plus by s in one bracket, so we have s square plus 1 and common by s, remain value is 1 upon s square, and transfer these values in the right hand side, so 1 upon s square plus s minus 2 also. So finally हमारी इक्वेशन इस तरह से मिली हमें एस स्क्र प्लस 1 इंटू बाई एस इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्र प्लस एस माइनस 2, एंड इस टर्म को हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे इधर। तो हमने लिखा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन एस स्क्र प्लस 1 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन एस स्क्र प्लस एस माइनस 2
एंड जब इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली बाई एस इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्र इंटू एस स्क्र प्लस वन प्लस एस अपॉन एस स्क्र प्लस वन माइनस टू अपॉन एस स्क्र प्लस वन मिलता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब हमारा यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बट यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द हेल्प पार्शियल फ्रैक्शन। सो हम इसको ब्रेक करेंगे टू पार्ट में बाई द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो वी हैव बाई पार्शियल फ्रैक्शन वन अपॉन एस स्क्र इंटू एस स्क्र प्लस वन इक्वल टू ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्र प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्र प्लस वन ऑल्सो। इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं इसको। टेकिंग एलसीएम एंड वी हैव दिस स्टेप, एंड यहां से हम सिर्फ न्यूमरेटर को लेते हैं, डिनोमिनेटर को नहीं लेते हैं, और हमें एक आइडेंटिटी मिली वन इक्वल टू ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्र प्लस वन प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्र, एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो सिंप्लीफाई करने के बाद वी हैव वन इक्वल टू ए एस पावर थ्री प्लस बी एस स्क्र प्लस ए एस प्लस बी प्लस सी एस पावर थ्री प्लस डी एस स्क्र। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। On comparing coefficient of like powers of s in equation 5, so we have, first of all, we can write coefficient of s power 3 like a plus c, and left hand side में s power 3 नहीं है, so हम इसको लिखेंगे a plus c equal to 0। and next हमारा coefficient of s square is b plus d equal to also 0, and third is s coefficient of s means सिर्फ a मिलता है, a equal to 0, and last coefficient of constant term b equal to हमें 1 मिलता है। सपोज ये इक्वेशंस को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोला, and on solving these equations we have a equal to 0 and b equal to 1 and c equal to 0 and d equal to minus 1. So by using the values of a b c d, equation 4 becomes 1 upon s square into s square plus 1 equal to 1 upon s square minus 1 upon s square plus 1. Suppose that equation number 6, एंड इस पूरी वैल्यू को हमने इक्वेशन 6 से 3 में पुट करेंगे, और हमारी इक्वेशन 3 चेंज होने के बाद बाई एस इक्वल टू हमें मिला 1 अपॉन एस स्क्र माइनस 1 अपॉन एस स्क्र प्लस 1 प्लस एस अपॉन एस स्क्र प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एस स्क्र प्लस 1, एंड वी ऑब्जर्व दैट कॉमन टर्म माइनस 1 अपॉन एस स्क्र प्लस 1 and minus 2 upon s square plus 1 are also adding here. So we have by s equal to 1 upon s square, this is equal to minus 1 and minus 2 equal to minus 3. So minus 3 upon s plus 1 plus s upon s plus 1. Suppose that this is equation number 1. So taking inverse Laplace transform both sides of equation 7. So Laplace inverse of is equal to Laplace inverse of 1 upon s square minus 3. Laplace inverse of 1 upon s square plus 1 plus Laplace inverse of s upon s square plus 1. So we know that Laplace inverse of by s equal to by t, and Laplace inverse of 1 upon s square equal to t. Laplace inverse of 1 upon s square plus 1 equal to sin t, and Laplace inverse of s upon s square plus 1 equal to cos t is the final answer. So next question is, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही हमने सेलेक्ट किया है। यूपीएससी 2014 मेन एग्जाम में ये 20 मार्क्स के लिए आया था। वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज सॉल्व डी स्क्र वाई अपॉन डी एस एक्स स्क्र प्लस वाई इक्वल टू 8 ई पावर माइनस 2t इंटू साइन टी, वेयर बाई 0 इक्वल टू 0 एंड बाई डैश 0 इक्वल टू 0। So solution, given that d square y upon dx square plus y equal to 8 e power minus 2t into sin t.
and we can write this d square y upon dx square as y double dash. So we have y double dash plus y equal to 8 e power minus 2t into sin t, equation number 1. So taking Laplace transform both sides of equation 1, so we have Laplace of y double dash minus plus Laplace of y equal to 8 constant value Laplace of e power minus 2t into sin t. So we know that Laplace of y double dash means s square by s minus s by 0 minus y dash 0, and Laplace of y equal to by s, and Laplace of this value इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सो इसके लिए क्या करते हैं हम सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे इसका. सो हमने लिखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एंड ये ई पावर माइनस 2t है. सो यहाँ पर s इज कन्वर्ट इनटू s minus minus 2 means s is convert into s plus 2 लिखेंगे. सो हमारा रिजल्ट इस तरह से इक्वेशन 2 मिलेगा हमें ये बात. एंड बाय यूजिंग द गिवन बाउंड्री कंडीशंस आर y 0 equal to 0 and y dash 0 equal to 0 also. सो जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो रिमेन वैल्यू इस इक्वेशन 2 से रिमेन वैल्यू ओनली एस स्क्वायर प्लस 1 बाई एस इक्वल टू 8 अपॉन एस प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 मिलने वाली है. अब यहाँ पर ये ट्रिक है, इस होल स्क्वायर को ओपन करके कंपाइल करेंगे तो दिक्कत आएगी. सो इसको अभी एज इट इज रखिए. आगे इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई होगा. इसी कारण से ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए दिया गया है. सो हमने लिखा वाई एस इक्वल टू 8 अपॉन एस प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस एस के प्लस 1. सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड वी ऑब्जर्व दैट ये जो इक्वेशन 3 है इसमें फॉर्मूला कोई अप्लाई नहीं हो पाएगा. तो क्या करें? सो हम इसको ब्रेक करेंगे बाई द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. सो वी हैव 8 अपॉन s plus 2 whole square plus 1 into s square plus 1 equal to as plus b upon s square plus 2s plus 5 plus cs plus t upon s square plus 1. Suppose this is equation number 4. Taking LCM and we have this step, एंड यहां से हम सिर्फ न्यूमरेटर को लिखेंगे. सो वी गेट द आइडेंटिटी 8 इक्वल टू ए एस प्लस बी इंटू एस के प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस एस के प्लस 2s प्लस 5. एंड इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिली ये वाली इक्वेशन नंबर 5. 8 इक्वल टू ए एस पावर 3 प्लस बी एस स्क्र प्लस ए एस प्लस बी प्लस सी एस पावर 3 प्लस डी एस स्क्र प्लस 2c एस स्क्र प्लस 2ds plus 5c plus 5d. Suppose that this is equation number 5. इक्वेशन 5 के में s के कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे और हम इक्वेशंस लिखेंगे. एंड कोएफिशिएंट ऑफ s पावर 3 मिलता है हमें a प्लस सी इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज b प्लस 2c प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड. a plus 5c plus 2d equal to 0, equation number third. b plus 5d equal to 1, equation number 4. On solving equation first to fourth, we get a equal to 1 upon 10, b equal to 0, c equal to minus 1 upon 10, and d equal to 1 by 5. So by using these values of a, b, c, d, equation 4 becomes 8 upon s plus 1 whole square plus 1 into s square plus 1 equal to s upon 10 s square plus 2s plus 5 minus s upon 10 s square plus 1 plus 1 upon 5 s square plus 1. Suppose that this is equation number 5, and by the help of this equation 5, equation 3 becomes by s equal to s upon 10 s square plus 2s plus 5
माइनस एस अपॉन 10 एस स्क्र प्लस 1/5 s² + 1 इक्वेशन नंबर 6. Taking inverse Laplace transform both sides of equation 6, so we have Laplace inverse of ys equal to 1/10 constant value. So Laplace inverse of s upon s² + 2s + 5. ये वैल्यू फैक्टर को, इस फैक्टर को हम क्या लिखेंगे, s+2² + 1. ट्रिक मैंने जैसे बताया था. -1/10 Laplace inverse of s upon s² + 1 and plus 1/5 Laplace inverse of 1/s² + 1. So नेक्स्ट स्टेप हमने देखी, यहाँ पर फिर से ट्रिक यहाँ पर आ रही है. और ट्रिक क्या है, एक तो ये ट्रिक थी कि हमने इस वाले फैक्टर को इस फॉर्मेट में लिखना है, s+2² + 1 टाइप. एंड इसमें भी अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर +2 एंड -2 भी करना रहेगा. दिस इज द अनदर ट्रिक फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आल्सो. सो फाइनली हमारा ये स्टेप मिला हमें, और इसको हमने सेपरेट डिवाइड करेंगे. और सेपरेट डिवीजन हमारा इस तरह से, एक लाप्लास इनवर्स टर्म ये आएगा एंड सेकंड लाप्लास इनवर्स टर्म ये मिलेगा. सो फाइनली हमने लिखा लाप्लास इनवर्स ऑफ बाई एस इक्वल टू 1/10 लाप्लास इनवर्स ऑफ s+2/s+2² + 1 -1/10 लाप्लास इनवर्स ऑफ 2/s+2² + 1 -1/10 लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 1 प्लस 1/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 5. एंड अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, इसमें फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स इन टर्म्स में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा. सो वी कैन राइट बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन अबव इक्वेशन. सो वी हैव, इस टर्म को हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद लिखा लाप्लास इनवर्स ऑफ बाई एस इक्वल टू 1/10 e⁻⁻2t लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 1 -1/10 e⁻⁻2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 2/s² + 1 -1/10 लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 1 प्लस 1/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 1. And we know that this is the formula for cos t, this is the formula for sin t also. So final answer is by t equal to 1/10 e⁻⁻2t into cos t minus 1/10 e⁻⁻2t into sin t minus 1/10 cos t. एंड यहाँ पर 1/5 sin t, एक करेक्शन है यहाँ पर, ये वाला जो 2 है इसको हम बाहर लिखेंगे. यहाँ पर हमारा सिर्फ 1 रिमेन रहेगा, यहाँ पर 1 रिमेन रहेगा. इस 2 को यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ये करेक्शन, यहाँ पर ये वैल्यू 5 आने वाली है. दिस इज द करेक्शन हियर. सो प्लीज मेक श्योर दिस करेक्शन. एंड फाइनल आंसर आपका ये 10 नहीं होके यहाँ पर ये 5 रहेगा. आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही. सो हमारा ये आंसर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व d² + n² into x equal to a sin nt plus alpha where x और dx इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0. ये जो कंडीशंस हैं कुछ इस तरह से लिख दी हैं, इनका मीनिंग भी x एट 0 एंड x डैश एट 0 ही है, दोनों वैल्यू 0 गिवन है. सो कैसे सॉल्व करेंगे, विल सी. सो सॉल्यूशन गिवन दैट d² + n² into x equal to a sin nt plus alpha. एंड ये वैल्यू को हम d² ऑफ x मीन्स x डबल डैश प्लस n² x इक्वल टू a sin nt plus alpha, इक्वेशन नंबर 1.
taking Laplace transform both sides of equation 1, so we have Laplace of x double dash plus n square Laplace of x equal to a Laplace of sin nt plus alpha, and we know that Laplace of x double dash हम लिखेंगे, चाहे हमारा वेरिएबल y हो, चाहे x हो, चाहे और भी हो, फॉर्मूला का पैटर्न वही रहेगा। x डबल डैश मीन्स एस स्क्वायर से शुरू करेंगे और एक्स एस लिखेंगे, माइनस पावर कम करेंगे, 2 से 1 पावर करेंगे तो एस एक्स जीरो, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और पावर को और कम करेंगे तो एस पावर जीरो मीन्स यहाँ पर 1 एक्स डैश जीरो मिलता है। And next is n square into x into s, and राइट हैंड साइड में हम क्या करें, राइट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी। सो हमने लिखा ए कॉस अल्फा इज द कांस्टेंट वैल्यू, रिमेन वैल्यू मींस जो फंक्शन ऑफ टी है उसको लिखेंगे लाप्लास के साथ। सो हमने लिखा ए कॉस अल्फा लाप्लास ऑफ साइन एन टी प्लस ए साइन अल्फा लाप्लास ऑफ कॉस एन टी। Suppose that this is equation number 2. By using the given initial conditions, so equation 2 becomes, हमारी दोनों वैल्यू जीरो है, मीन्स ये टर्म और ये टर्म यहाँ से फिनिश हो जाएगा, एंड सिर्फ हमें ये वैल्यू मिलती है एस स्क्र इंटू एक्स एस प्लस एन स्क्र इंटू एक्स एस। सो ब्रैकेट के अंदर हमने एस स्क्र प्लस एन स्क्र इंटू एक्स एस लिखा, and a cos alpha into Laplace of sin nt plus a sin alpha into Laplace of cos nt, and we know that Laplace of sin nt equal to n upon s square plus n square, and Laplace of cos nt equal to s upon s square plus n square। सो हमारा फाइनल स्टेप मिलेगा एक्स एस इक्वल टू ए कॉस अल्फा इंटू एन अपॉन एस स्क्र प्लस एन स्क्र होल स्क्र प्लस ए साइन अल्फा एस अपॉन एस स्क्र प्लस एन स्क्र होल स्क्र। सपोज दैट इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा कोई भी, यहाँ पे इस साइड में इस इक्वेशन 3 को क्या किया, पहले तो हमने लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लिखा। सो फाइनली हमें मिला एक्स एस इक्वल टू ए कॉस अल्फा इंटू एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3, सो वी हैव लाप्लास इनवर्स ऑफ एक्स एस इक्वल टू ए एन, एन कांस्टेंट वैल्यू से यहाँ पे लिखा, कॉस अल्फा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, एंड यहाँ पर फिर से हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर या तो हम इसमें अप्लाई करें बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम सॉल्व करें, और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, पीएफएम। दोनों की हेल्प से ही हमारा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड होगा। सो फाइनली हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स मिलेंगे ये, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी ज्यादा स्टेप्स वाला है, सो इसका डिटेल हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, एंड हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा बाय द हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस। हमारे क्लासेस में हमने ये क्वेश्चन कराए थे, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिखा। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 एन पावर 3 sin एन टी माइनस एन टी कॉस एन टी मिलता है, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर मिलता है टी अपॉन 2 एन इंटू साइन एन टी। इक्वेशन नंबर 5। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 4, so by using equation 5, equation 4 becomes xt equal to na cos alpha 1 upon 2n power 3 sin nt minus nt cos nt plus a sin alpha t upon n 2n sin 2 nt।
So xt equal to a upon 2n power 2 cos एल अल्फा साइन एन टी, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस एन टी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एन टी। इनमें त्रिकोणोमेट्री अप्लाई करेंगे तो ये cos a प्लस बी फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। सो ये हमारा a अपॉन 2n स्क्वायर cos अल्फा साइन एन टी माइनस एन टी cos एन टी प्लस अल्फा मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू cos 2t, x0 इक्वल टू 1, x pi by 2 इक्वल टू 1। So given that the ODE is t square x upon dt square plus 9x equal to cos 2. So question is solve t square x upon dt square plus 9x equal to cos 2t, where x0 equal to 1 and x pi by 2 equal to। This is the very important question and tricky question also. So कैसे solve करेंगे देखें। Given that d square x upon dt square plus 9x equal to cos 2t and this is equal to x double dash plus 9x equal to cos 2t also. Suppose that this is equation number 1. So taking Laplace transform of equation 1 both sides, so Laplace of x double dash plus 9 Laplace of x equal to Laplace of cos 2t. And we know that Laplace of x double dash equal to s square xs minus s into x0 minus x dash 0 plus 9 into xs equal to Laplace of cos 2t means इसको s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं। सो इस इक्वेशन 2 में हमने पहले तो इनिशियल कंडीशंस अप्लाई किए हैं और इनिशियल कंडीशंस को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर ये कंडीशन हमें गिवन नहीं है। सो हमने इसको x0 इक्वल टू स्मॉल a कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर कर ली। सो हमने लिखा by using the initial conditions and by this assumption equation 2 becomes s square into xs minus a minus s plus 9x equal to s upon s plus 4। एंड फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स एस इक्वल टू मिला एस अपॉन एस स्क्र प्लस 4 इंटू एस स्क्र प्लस 9 प्लस एस अपॉन एस स्क्र प्लस 9 प्लस ए अपॉन एस स्क्र प्लस 9। सो सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर भी हमें अभी पहले लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। सो और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वेशन बोल रहा है इस वाले टर्म में लाप्लास इनवर्स से अप्लाई नहीं कर सकते। सो इसको सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करेंगे इसको, और हमने लिखा 1 s अपॉन एस स्क्र प्लस 4 इंटू एस स्क्र प्लस 9 इक्वल टू ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्र प्लस 4 प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्र प्लस 9। नंबर एलसीएम दिस एंड फाइनली हमारा न्यूमरेटर हमने लिखा दिस इज इक्वल टू एस। सो एस इक्वल टू ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्र प्लस 9 प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्र प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 5 हमारी एक आइडेंटिटी मिली। इसको लिखा हमने s इक्वल टू ए एस पावर 3 प्लस बी एस स्क्र प्लस 9as प्लस 9b प्लस सी एस पावर 3 प्लस डी एस स्क्र प्लस 4cs प्लस 4d ऑल्सो। इक्वेशन नंबर 5 ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ like powers of s, so we have coefficient of s power 3 means a plus c equal to 0. I call it this equation number first, and second coefficient of s square means b plus d equal to 0 also. I call it this is equation number second, and third is 9as plus 4cs equal to 1। राइट हैंड साइड में s है तो कोएफिशिएंट ऑफ s 1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड लास्ट इज कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट इज 9b
plus 4d equal to 0 also. Suppose this is equation number 4. On solving equation first, second, third, fourth, and we get a equal to 1 by 5, b equal to 0, c equal to minus 1 by 5, d equal to 0 also. So by using these values of a, b, c, d, equation 4 becomes s upon s square plus 4 into s square plus 9 equal to s upon 5 into s square plus 4 minus s upon 5 into s square plus 9. Suppose that this is equation number 6. So by using the equation 6, equation 3 becomes xs equal to s upon 5 s square plus 4 minus s upon 5 s square plus 9 plus s upon s square plus 9 plus a upon s square plus 9. एंड यहाँ पर इन दोनों को हम कंपाइल करें तो ये वैल्यू 1 माइनस 1/5 एंड दिस इज इक्वल टू 4/5 मिलता है. सो हमने इनको कंपाइल करने के बाद ये वैल्यू लिख दी 4/5 s स्क्वायर प्लस 9. सो एक्स इक्वल टू हमें मिला इक्वेशन नंबर 7 एक्स इक्वल टू s अपॉन 5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 s अपॉन 5 s स्क्वायर प्लस 9 प्लस a अपॉन s स्क्वायर प्लस 9. इक्वेशन नंबर 7 बोल सकते हैं. टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म of equation 7, both sides of equation 7, so we have Laplace inverse of xs equal to 1 upon 5 Laplace inverse of s upon s square plus 4 plus 4 upon 5 Laplace inverse of s upon s square plus 9 plus a Laplace inverse of 1 upon s square plus 9. And we know that Laplace inverse of this value equal to cos 2t, a Laplace inverse of this value equal to cos 3t, a Laplace of this equal to sin 3t. But here correction, यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पर a/3 भी लिखा जाएगा. सो हमारा ये रिजल्ट कुछ इस तरह से रहेगा. इक्वेशन नंबर हमारी 8 मिल गई. हमने यहाँ पर 3 ऐड करना है. अब हमारा, क्योंकि हमारी गिवन कंडीशन थी वो अलग थी, हमने a को अपनी तरफ से कंसिडर किया था. सो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. सो कैसे करेंगे देखिए. x इक्वल टू π/2 इन इक्वेशन 8. सो b है x π/2 इक्वल टू 1/5 cos 2 इंटू π/2. सो 2 and 2 कैंसिल होगा प्लस 4/5 cos 3π/2 प्लस a/3 sin 3π/2. इक्वेशन नंबर 9. And we know that cos pi equal to -1, cos 3π/2 equal to 0, and sin 3π/2 equal to -1. And given that x at π/2 equal to -1 also, so हम ये वैल्यूज को पुट करने के बाद ये रिजल्ट को लिखेंगे -1 इक्वल टू 1/5 इंटू -1 प्लस 4/5 प्लस a/3 इंटू -1. एंड ये वैल्यू यहाँ से फिनिश हो गई. एंड फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद a इक्वल टू मिलता है हमारा 12/5. सो बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ a, इक्वेशन 2 gives xt इक्वल टू 1/5 cos 2t प्लस 4/5 cos 3t प्लस 12/15 sin 3t. एंड इसमें से अगर 1/5 कॉमन करें तो xt इक्वल टू 1/5 cos 2t प्लस 4 cos 3t प्लस 4 sin 3t हमारा रिजल्ट होता है.